In continuation with NEET previous year questions on electrostatics, this is question number 6, which appeared in 2010 and based on Coulomb's law of electrostatic forces. So check the question. Two positive ions, each carrying a charge Q, are separated by a distance D. सो आपके पास दो चार्जेस हैं, दोनों आइडेंटिकल एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस प्लस, एंड इनिशियली बोथ हैव अ सेपरेशन स्मॉल d. If F is the force of repulsion, obviously if both are like charges, they will be feeling the repulsive force towards each other. ठीक है, तो इसके कारण वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. The number of electrons missing from each ion will be, where E is the charge on an electron. So according to Coulomb's law, we can have the expression for force as F equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q square divided by D square. अब आप Q लेते हैं, so we get Q square equal to 4 pi epsilon 0 into force into d square. So we get Q equals to square root of 4 pi epsilon 0 into F into d square. Now, by quantization of charge, we can have Q equals to NE. So, this is again under root of 4 pi epsilon 0 into F into D square. So, number of electrons will be, E will be shifted to the right side. So, this gives us square root of 4 pi epsilon 0 F into D square divided by E. Now check the options. ऑप्शंस में आपको डिवाइडेड बाय डी सिंगल फॉर्म में गिवन नहीं है, सो चेक कर लेंगे आप. डिवाइडेड बाय ई इज नॉट गिवन इन सिंगल फॉर्म, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा. ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बिकॉज ऑप्शन ए में स्क्वायर रूट इज मिसिंग. सो दिस we will be adjusting e inside the square root as n is square root of 4 pi epsilon 0 f into d square upon e square. As we know that we can write 5 as square root of 5 square. Similarly, e as square root of e square. So correct option will be option number C. Now check next question which appeared in 2003 based on Coulomb's law. An electron is moving round the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. तो आपको गिवन डेटा में है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और रेडियस है उसके ऑर्बिट की r. द कूलम फोर्स F चेक करेंगे, आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है between the two is. So let's have a diagram. So this is the nucleus. हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा एंड दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन. इस पर चार्ज होगा Q एंड इस पर चार्ज होगा माइनस Q. बट वेन एवर वी कंसीडर कूलम फोर्स we don't take the sign of charges. Now, the radius of this electron is given in the question as r. So we have to take the vector form of Coulomb's force. So as we know, the scalar form is 1 upon 4 pi epsilon 0 into q1 q2 divided by r square. This is the scalar form. But if we take this Coulomb's force in vector form, this is F vector 1 upon 4 pi epsilon 0 सेम रहेगा. अब आपके पास इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E और प्रोटॉन पर भी चार्ज है E, क्योंकि आप दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेते हैं डिवाइडेड बाय r square into the unit vector r which acts along the line
joining electron and proton. So we can have the unit vector as the vector upon its mod. तो mod को आप सिर्फ letters से भी denote कर सकते हैं. So when we put the value of r cap, check what will be the final answer. 1 upon 4 pi epsilon 0 into e square into r vector divided by r square into r. So r square into r will be r cube. So this is f vector as 1 upon 4 pi epsilon 0 into e square into r vector divided by r cube. Now go to check options. ठीक options check करेंगे. तो ऑप्शन में आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो मैचिंग ऑप्शन आपको मिल रहा है, दिस इज ऑप्शन नंबर डी. दिस इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is slightly different. When air is replaced by a dielectric medium of force constant K, जिसको हम थियोरी में पढ़ते समय डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल चुके हैं. The maximum force of attraction between two charges separated by a distance. So as in Coulomb's law, जो हम लोगों ने कांस्टेंट लिया हुआ था C, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको आपने बताया था कि ये जो C कांस्टेंट है, सबसे पहले ये डिपेंड करता है ऑन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस एंड सेकेंडली it depends on the system of units chosen. So as we had taken the medium as air or free space or vacuum and the system of units was taken as SI, then we got force in air as 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square. This was equation number 1. But in the question it is given that air is replaced by a dielectric medium of force constant K. Now the new term appears here, force constant. So let's see what is the meaning. When any medium is inserted between two charges, the force between those charges according to Coulomb's law will alter. So that force will be now 1 upon 4 pi epsilon 0 into K Q1 Q2 divided by R square. This is equation number 2. Now we have to check after inserting a medium what is the change in force. क्या हो जाएगा? Force कम होगा, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोर्स बढ़ जाएगा या फिर फोर्स सेम रहेगा, या फिर मीडियम इंसर्ट करने के बाद दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स 1 अपॉन के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा. सो फॉर दिस वी विल बी डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्योंकि कंपेयर करेंगे हम. सो दिस इज एफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ एयर. सो ऑल विल कैंसिल एक्सेप्ट के. पुट कर दिए हम लोगों ने वैल्यूज दोनों इक्वेशंस की. सो दिस इज डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. एवरीथिंग विल कैंसिल एक्सेप्ट के बचेगा. तो आपको मिला एफ मीडियम अपॉन एफ एयर इक्वल्स टू 1 बाय के. इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर जाते हैं, डायरेक्टली के लिख जाते हैं. सो नाउ चेक ऑप्शंस. ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीजेस के टाइम्स. ऑब्वियसली दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज आपको जो मीडियम में फोर्स मिल रहा है दोनों चार्जेस के बीच का, इसको जब आप एयर के कंपैरिजन में लेंगे, सो दिस इज एफ एयर डिवाइडेड बाय के. तो हम मान लेते हैं एफ एयर में दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है 70 न्यूटन. एंड सपोज किसी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसको इस क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट बोला गया है वो 7 है. तो एफ मीडियम का आंसर आपके पास आएगा एफ एयर अपॉन के. So this will be equal to 70 upon 7. It means 10 Newton.
So obviously force is decreased by a constant K. Now check next question again based on Coulomb's law. Point charges plus 4q minus q and plus 4q मतलब दो charges आपके पास like हैं are kept on the x axis at points x equal to 0, x equal to a and x equal to 2a. तो इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की. दिस इज अ लाइन. सपोज दिस इज सिचुएटेड अलोंग एक्स एक्सिस. सो इस पर हम लोगों ने फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन x इक्वल टू 0 पर तो आपके पास तीन पॉइंट्स हैं. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 2a. सो सबसे पहले मैंने लिया 0 मीन्स ओरिजिन, देन इक्वल डिस्टेंस x इक्वल टू a, देन अगेन इक्वल डिस्टेंस x इक्वल टू 2a. 0 पर प्लेस किया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन प्लस 4q. देन x इक्वल टू a पर पुट किया माइनस q एंड x इक्वल टू 2a पर पुट किया प्लस 4q. Now they are just kept. Then only option A के हिसाब से only minus q is in stable equilibrium. तो या तो सभी चार्जेस स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे, जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम वीडियो 1 में कर चुके हैं. तो आप किसी भी एक चार्ज पर जब सारे फोर्सेस निकाल लेते हैं और वो फोर्सेस का आंसर अगर जीरो आता है तो चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. But if we can mathematically calculate whether the forces will be zero, so answer will be no. क्योंकि आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. सपोज आप इस माइनस क्यू को फोकस करें तो ये प्लस 4q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ भी ये प्लस 4q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो इस माइनस क्यू पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो उनका आंसर जो आपको मिलेगा नेट आंसर, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए. सो यू कैन ट्राई टू कैलकुलेट. देन ओनली माइनस क्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. ठीक है, माइनस क्यू तो आ रहा है इक्विलिब्रियम में, बट जब आप प्लस 4q पर दूसरे दो फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे एंड इस प्लस 4q पर भी दूसरे दो फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे तो उनका नेट सम जीरो नहीं आएगा. ठीक है, तो इसको ट्राई कर सकते हैं आप. इसमें से अगेन एक फोर्स पर एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा. सो दिस ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग. सेकेंड, नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम. तो ओरली तो हम देख चुके हैं कि माइनस क्यू इक्विलिब्रियम में है और इसमें से भी एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है. सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. थर्ड, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब मैथमेटिकली हम देख चुके हैं कि माइनस क्यू पर नेट फोर्स जीरो होगा, बट अगर हम इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में कोई भी छोटा सा भी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, so these three charges or any of the three charges will leave this line. इस लाइन में से वो हट जाएंगे और जैसे ही वो इस लाइन में से हटेंगे so they will not come back on this line. Hence, on based on that qualitative reason, we can say that all the charges are in unstable equilibrium. क्योंकि मेन बात है, जब भी आप फोर्स कैलकुलेट करते हैं आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, आप डायरेक्शन के बारे में भी हर समय अलर्ट रहेंगे. सो जो हम लोगों ने फर्स्ट केस में बोला कि माइनस के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, दैट वी हैव जस्ट टॉक फॉर द मैग्नीट्यूड but we have not considered about the direction. So this thing is important and option number D is obviously wrong. So the correct option is option number C. Now check next question. Question number 10 is an electric dipole of dipole moment P. Dipole आप पढ़ चुके हैं.
a pair of two equal but opposite charges. तो यहाँ पर आपको कंसीडरेशन में एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट आपको गिवन है एज डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द लेंथ बिटवीन टू चार्जेस, इसको हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस किया हुआ है पहले। तो फर्स्ट केस में आपने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस किया है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाय 90 डिग्री। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आपको फाइंड करना है वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, सो सबसे पहले तो हम वर्क डन का जनरल एक्सप्रेशन ले लेंगे इन द केस ऑफ डायपोल। सो व्हेन एवर डायपोल लाइक माइनस क्यू एंड प्लस क्यू is placed in a uniform electric field, ये आपके पास parallel and equispaced lines हैं showing uniform electric field, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिया आपने माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, सो दिस इज पी वेक्टर। तो इस तरह से पहले हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है सच दैट डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें डायपोल को टर्न करना है 90 डिग्री से। तो वर्क डन का जनरल एक्सप्रेशन आता है माइनस पी ई कॉस थीटा, एंड अगर आपको उसको थीटा 1 से थीटा 2 तक टर्न करना है, सो दिस विल बी द फाइनल एनर्जी माइनस द इनिशियल एनर्जी। सो इन दिस क्वेश्चन we want to rotate it through 0 degree to 90 degree. So this will be minus PE cos 90 degree minus of minus PE cos 0 degree. Since cos 90 degree is 0, so we can take first expression as 0. Now this minus into minus will be plus PE cos 0 degree is equal to 1. So we get the answer for work done to rotate the dipole from 0 degree to 90 degree as just PE. Now check for the options. आपके पास राइट आंसर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर